Hello students, we have started with our fourth chapter multiplication and we have already done up to exercise 4.5. Then we have also done our word problems. Then we did our exercise 4.6 based on word problems. Then we have learned about the different other methods for multiplication, that is the lattice multiplication, then multiplication of 2-digit number by a 1-digit number mentally. And here also we have followed two methods, that is doubling and adding to multiply by 3 and 4, and also we have used the expanded notation method. We also have learned how we can go for the estimating products. So based on the methods, we will go through our exercise 4.7. So let us start with our exercise 4.7. So the first question in exercise 4.7 is multiply by lattice method. So here you have your first question as 45 multiplied by 6. So to get the numbers arranged, we need to first draw this box what is already drawn for you. So just we will write the digits, that is 45 like this and 6 here. Okay, so this is how we have to write when we are following lattice method. Okay, so now what you need to do is you have to go for the multiplication of 5 and 6. So 5 multiplied by 6 is 30. So write down 30 here. Okay, now here you have 4 and here 6. So 4 multiplied by 6 gives you 24. So like this you need to do it. Now what you will do is you have to add the diagonal boxes. Okay, so now here you can see यहाँ पर एक ही आपको बॉक्स है, इसके डायगोनली कोई भी बॉक्स नहीं है. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो डिजिट है उसको आप ऐड करके लिखोगे. नाउ देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है बोर्ड में. सो अभी फिर से मैं यहाँ पर लिखती हूँ 30 और यहाँ 24. ठीक है, अब देख पा रहे हैं आप यहाँ पर सिर्फ 2 है. सो नो नंबर इज हियर, सो वी विल ओनली राइट 2. ओके, नाउ एज यू हैव टू कंसिडर अनदर डायगोनल बॉक्सेस. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 4 है और ये डायगोनली 3 है. ओके, सो दिस गिव्स यू 7. नाउ इफ यू लुक फॉर दिस वन, here you have only 0. Okay, so now write down the number, that is 2. Here after adding the two numbers you get 7 and here 0. So you have 270 as your number. So you can write that 45 multiplied by 6 is equal to 270. So this is your product. So is this clear to you? So what we did, we have written the multiplicand and multiplier like this. Then we have done the table of 5 or 6. Here we have the table of 4. So according to table we get 5 multiplied by 6 as 30 and 4 multiplied by 6 as
24. So we have written the products like this, and after writing the products you need to see the diagonal boxes. So here you have one box, here no box is there, that is why you have taken this number here, and here you have two diagonal boxes, so you have added the two digits here, 4 and 3, and you get 7. And here also you have one diagonal box, so you need to write the number here. So no other number is there, that is why you have written here 0. Now you have to take the numbers together, that is 2, 7 and 0. So you have 270 number with you, and this shows that 45 multiplied by 6 gives you 270, that is 270, which is the product of this multiplication. Okay, so let us go for the next sum. Now the next sum is 93 multiplied by 5. Okay, so let us do this. So your second sum, that is B1, is 93 multiplied by 5. So see, I have arranged this number according to your lattice multiplication. So you have 93 multiplied by 5. So you can see the arrangement here. Now let us multiply 3 into 5 gives you 15. So write down like this. Now 9 5s are 45. So write down the number like this. Now again you have to see the diagonal boxes. तो यहाँ पर आपका फर्स्ट डायगोनल बॉक्स में क्या है, 4 है. यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, 5 और 1 है. सो लेट अस ऐड दिस टू नंबर्स. सो यू हैव 6, देन हियर यू हैव 5. सो योर नंबर comes as 465. So you can write 93 multiplied by 5 is giving you 465. So is it clear? Very easy. So just be careful in writing the numbers properly, okay? And you can get the number easily if you know the tables by heart. Okay, so every time go for your table and learn the tables by heart, so that this is easy for you, this type of sums. Okay, now let us go for the next two sums. The next two sums I am giving you as homework. बहुत easy है, तो आप इसको try करेंगे, ठीक है? So this C and D is homework for you. Now let us go for the second sum. सेकेंड सम देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय लैटिस मेथड एंड चेक बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो यू हैव बीन गिवन विथ 6 questions. So here you need to go for lattice method as well as the simple multiplication method. आपको दोनों मेथड से इनका प्रोडक्ट निकालना है. एक है लैटिस मेथड से और दूसरा सिंपल मल्टीप्लिकेशन, जो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखे थे, वैसे उस तरह के मल्टीप्लिकेशन से आपको इनका प्रोडक्ट्स निकालना है. तो मैं इसमें भी आपको 2 सम्स आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी. आप बाकी के जो 4 प्रॉब्लम्स है वो आप एज ए होमवर्क ट्राई करोगे, ठीक है? सो सी, आई हैव रिटर्न द question for you. Now let me first do the simple multiplication method. Okay, तो simple multiplication method में हम कैसे करते हैं? So simple multiplication, so you have 60 multiplied by 9. So what you will do, 9 zeros are 0, then 6 nines are 54. Okay, so this is your simple multiplication method. Okay, now we will go for lattice method.
सो लैटिस मेथड में देखिए फिर से मैंने सम को इस तरह से अरेंज कर लिया है, यहाँ पर 9 लिख दिया है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर 60 लिखा है और यहाँ पर मैंने 9 लिखा है। नाउ यू हैव टू गो फॉर योर मल्टीप्लिकेशन। सो 0 मल्टीप्लाइड बाय 9 गिव्स यू 0। सो 0 यहाँ पर आप लिखोगे यूनिट प्लेस में, दैट इज वंस प्लेस में, और सिंस यू डोंट हैव एनीथिंग इन टेंस प्लेस सो राइट 0 हियर एज वेल। ओके, now you have 6 9s are 54, so write down here like this। ओके, तो यहाँ पर क्या था 0 9s are 0, इसीलिए मैंने क्या किया टेंस के प्लेस में भी 0 लिख दिया है। ओके, नाउ गो फॉर योर डायगोनल बॉक्सेस। यहाँ पर फर्स्ट डायगोनल में 5 है, सेकेंड डायगोनल्स में क्या है 4 + 0, सो दैट गिव्स यू 4 and here you have 0। ठीक है, so your number comes as 540। okay, and you can write that the product is 540। So you can see by simple multiplication and by lattice method the answer is same, isn't it? तो ये मेथड से और ये मेथड से आपका दोनों आंसर्स आर सेम। So you can go for any method which one you like। Okay, so let us go for the second sum। तो आप ये सम का भी आप देख सकते हैं कि पहले मैंने सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड लिया है, उसमें मैंने सिंपली दोनों जो नंबर्स है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आप देख सकते हो 8 0s are 0, 8 1s are 8, so your product comes as 80। now we will go for lattice method। here we first need to draw the box, then you have to arrange the numbers accordingly। so अभी आप क्या करोगे 0 8s are 0, तो देखिए आप दोनों बॉक्स में 0 लिखेंगे because you get 0 8s are 0, so that we can write in ones place, and the tens place don't have any number, so we have replaced it with 0। now you have 1 8s are 8। आप इधर भी देख सकते हैं हमने 8 को वंस प्लेस में लिखा है और ऊपर टेंस के प्लेस में 0 लिख दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पर डायगोनल बॉक्सेस में, यहाँ पर डायगोनल में क्या है 0 है। इन दोनों डायगोनल बॉक्स में लेट अस ऐड दिस 2 numbers, we get 8। okay, and here you have 0, so your number comes as A080। तो आपका नंबर क्या आ गया यहाँ पे 080। सो यू कैन राइट, सो 10 multiplied by 8 gives you how much 80, because you need not have to take this 0। ये वाला जो 0 है वो आप नहीं लोगे, सिर्फ ये दोनों नंबर्स आप लोगे। सो 10 multiplied by 8 gives you 80। सो आप देख सकते हो ये दोनों आंसर सिंपल मल्टीप्लिकेशन और लैटिस मेथड दोनों में जो प्रोडक्ट आया है वो सेम है। okay, so this is how you need to go for the 2 methods। now you have another 4 sums for you and that you will do as your homework। आपके पास 4 और सम इसी तरह के दिए गए हैं, तो आपको मेथड सिखाया गया है, इसीलिए आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। now let us go for question number 3। now your third sum is multiply mentally using the most suitable method and write the answer। so for this multiply mentally we have 2 methods, isn't it? one is that doubling method, you have learned that, and second method is the expanded form method।
So for first two sums I will show you both the methods, and मैं पहले इन दोनों सम्स में जो दोनों मेथड यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखा दूंगी, और रेस्ट जो है नेक्स्ट जो सम्स है उसमें आपको जो भी मेथड इजी लगे आप वो मेथड से बाकी के सम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट दोनों सम में मैं आपको डबलिंग मेथड और एक्सपांडेड फॉर्म मेथड दोनों यूज़ करके सिखाऊंगी। ठीक है, नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन दैट इज 38 मल्टीप्लाइड बाय 8। सो यू हैव दिस क्वेश्चन फॉर यू। तो आपने डबलिंग जो मेथड था उसमें आपने देखा था कि जब भी हम मल्टीप्लायर जब 3 एंड 4 होता है तब हम वो मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास क्या है, आपके पास 8 है एज ए मल्टीप्लायर। सो यहाँ पर मैं आपको एक्सपांडेड फॉर्म मेथड से सिखा रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लिकेंट क्या है 38, बड़ा वाला नंबर जो है वो है आपका 38। सो लेट अस गो फॉर एक्सपांडेड फॉर्म। सो इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा आपका 30 प्लस 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम ये 8 को इन दोनों नंबर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट अस फर्स्ट गो फॉर मल्टीप्लाई 30 by 8. Okay, so let us go for multiplication. 30 multiplied by 8 is giving you how much? 240. So let us write here. So हमने लिख लिया है 30 multiplied by 8 is equal to 240। फिर हम क्या करेंगे, हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे ये जो 8 है इसको हम फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 8 बाय 8। सो 8 बाय 8 इज गिविंग यू 64। ओके, so 8 by 8 is giving you 64. Now what we will do? We will add this number and this number. Okay, so let us add this and this. Now see, I am adding these two numbers. Add 240 plus 64. So this 240 and 64 will give you 304। आप ऐड करके देख सकते हो, देखिए ऐसे ऐड कर लीजिए आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4, 6 प्लस 4 इज 10 और यहाँ पे 1 कैरी हो गया 304। सो आपको एडिशन करके कितना मिला, आपको सम मिला है 304। So you can write 38 multiplied by 8 is giving you 304. Okay, so this is one of the method of solving the sums mentally. Okay, तो ये वाला मेथड हमने ये सम में यूज़ किया है। तो again we will just see what we have done. We have taken the multiplicand और इसको हमने expanded form में break किया है, और उसके बाद हमने each ये जो expanded notation है इनको एक एक को लिया है और multiplier से उसको हमने मल्टीप्लाई किया है, और फिर जो भी हमको प्रोडक्ट मिले हैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को हमने ऐड कर दिया है। नाउ एज वी हैव एडेड दिस वी गेट द प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू इट बाय एक्सपैंडेड फॉर्म मेथड। सो वील मूव टू द सेकेंड वन। Now see, as you have the multiplicand as 71 and multiplier as 3, so here in doubling method what you do, you take the multiplicand, आपको ये multiplicand लेना है और इसको आपको डबल करना है। ओके, सो लेट अस राइट दैट double 71 to get। okay, so here you need to just add the two numbers, so you get 142।
Okay, now what you need to do is add one more 71 to 8. तो आपको क्या करना है, एक और 71 को ऐड करना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका मल्टीप्लायर जो है वो 3 है, इसीलिए हमने क्या करना है, हमने ये जो मल्टीप्लिकेंट है इसको 3 बार ऐड करना है. तो यहाँ 2 टाइम हो गया है, अब हम और एक बार इसे ऐड कर लेंगे. सो यू कैन सी 142 प्लस 71. अगेन इट विल गिव यू 2 + 1 is 3, 7 + 4 is 11, 1 carry and you get 213. Okay, so your product is 71 multiplied by 3 is 213. So आपका प्रोडक्ट क्या आ गया, 213. ठीक है, तो इसमें हमने डबलिंग मेथड क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें पता है डबलिंग मेथड में यहाँ पर जो मल्टीप्लायर वो 3 नहीं तो 4 होना चाहिए, तो ही हम ये डबलिंग मेथड का यूज़ करते हैं. अदरवाइज हम एक्सपांडेड मेथड का यूज़ करते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन. तो आप देख सकते हो मैंने नेक्स्ट सम ले लिया है, उसमें क्या है 25 मल्टीप्लाइड बाय 4. फिर से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 है मल्टीप्लायर. सो हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग डबलिंग मेथड. फिर से हम डबलिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इसमें आपका 4 टाइम्स यू नीड टू टेक 25. ठीक है, तो अब देखिए डबल 25 टू गेट. अभी ये जो नंबर 25 है इसको मैं डबल बार मैं लेती हूँ और इसे ऐड करती हूँ. 25 + 25 कितना होता है, इट गिव्स यू 50. नाउ यू हैव टू अगेन डबल द सम to get. To double the sum means ये जो 50 है इसको आपको 2 बार ऐड करना है. तो 50 कितना होता है, 100. सो 25 multiplied by 4 gives you 100. सो ठीक है, सो देखिए हमने ये भी डबलिंग मेथड से हमने इसका प्रोडक्ट निकाला है. ओके, सो आपको यदि वेरीफाई करना है, आपको यदि चेक करना है कि आपका जो डबलिंग मेथड आपने यूज़ किया है वो प्रॉपर है या नहीं, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आप इसका प्रोडक्ट निकाल के रखिए और फिर इसके साथ उसको चेक कीजिए. ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर मेंटल मेथड्स ही यूज़ करने के लिए कहा है, इसलिए आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते. तो इसीलिए आप क्या करोगे, आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप करके उसका रफ में करके उसका वैल्यू आप माइंड में रखिए. और देन वाइल डूइंग योर डबलिंग मेथड, देन सी वेदर योर प्रोडक्ट वॉट एवर इज कमिंग इज टैलिंग विथ सेम एज विथ योर सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड. Okay, so this is how you need to go for this sum. उसके बाद का जो D sum है, अब आप देख सकते हो मैंने हर एक सम लिख लिया है. तो ये जो D प्रॉब्लम है ये आप एक्सपैंडेड फॉर्म से आप ये सम सॉल्व कर सकते हैं. अब यहाँ पर जो है 66 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आप डबलिंग मेथड से यूज़ कर सकते हैं. ये देखिए ये भी आप एक्सपैंडेड फॉर्म से यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे आप डबलिंग मेथड, क्योंकि यहाँ 4 है, और यहाँ भी आप एक्सपैंडेड फॉर्म मेथड यूज़ कर सकते हैं. तो मैंने आपको हर एक सम के नीचे दे दिया है आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे. सो आप इन मेथड्स को अच्छी तरह से स्टडी कीजिए और फिर आप इन सभी सम्स को सॉल्व
कीजिए। तो आपको इस बार बहुत सारे सम्स होमवर्क दिए गए हैं ना। फर्स्ट जो सम था लैटिस मेथड में, उसमें 2 मैंने आपको होमवर्क दिए हैं। फिर जो सेकंड सम है उसमें से मैंने 4 होमवर्क दिए हैं, और अब आपको मैंने इस सम में भी 5 सम्स आपको होमवर्क दिए हैं। तो आप जितना होमवर्क करोगे उतना आपके लिए ये सभी सम्स इजी हो जाएंगे, ठीक है। सो प्रैक्टिस कीजिए और आपको इजीली ये सब सम्स आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है वो मैंने ऑलरेडी आपको हिंट दे दिया है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू 4th क्वेश्चन। Now we will move to 4th question where you have estimate the following products। तो यहाँ पर आपको वो जो estimating products है वो वाला मेथड आपको यूज़ करना है। तो you have to go for that round of value, isn't it? So round of value हम लेंगे, उसके बाद हम इनका multiplication करेंगे। ओके, सो वाइल डूइंग द एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट वी हैव टू गो फॉर द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑल्सो, और एक्चुअल वैल्यू भी हम इसके साइड में निकाल लेंगे, सो दैट वी डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द 4th क्वेश्चन। Now you can see 36 multiplied by 8 you have to find out. So I have made 2 columns, one as estimated value and other one as actual value. So now we will write the multiplicand and the multiplier. So let us first arrange it. ठीक है, तो 36 you can go for round of value as 40. So you can write 36 rounded off to 40, ठीक है। क्यों, यहाँ पर आप देख सकते हो ना 6 है, तो राउंड ऑफ वैल्यू में क्या होता है 0 to 4 का वैल्यू क्या होगा, 0 to 4 का वैल्यू हम लोग उसमें ऐड 1 नहीं करते हैं, है ना। और ये यहाँ पर 1s के प्लेस में 5 होगा, तो व्हाट वी विल डू 5 एंड मोर देन दैट 5 वी विल ऐड 1 प्लस। ओके, सो हियर वी हैव 6, सो वी हैव द राउंडेड ऑफ वैल्यू एज 40। ये तो आपने पहले पढ़ा है ना। सो हमने 40 लिख लिए हैं, और उसके बाद व्हाट वी विल डू, वी विल गो फॉर 8। Now you can easily do the multiplication. So you have 320 as your product. Now what we will do, we will go for the actual value here. Actual value में आप क्या लिखोगे 36 multiplied by 8. So आप कर सकते हो यहाँ पर 8 6 48, ये आपका कैरी ओवर है, ठीक है। 24 25 तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका क्या आ गया प्रोडक्ट 288, और यहाँ आ गया 320। सो दिस टू आर मोर ओवर क्लोजर टू ईच अदर, क्योंकि इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 300 आएगा, और इसको भी हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसका भी आपको 300 आएगा। Okay, so what you need to do is you have to write, so you write the statement like this. So estimated value 320 is close to actual value 228. So this is how you need to go for your next question. Now see students, I have done the next प्रॉब्लम एज वेल 42 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका एस्टिमेटेड वैल्यू क्या आ जाएगा 42 का 40, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 है। सो 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, तो क्योंकि ये 2 जो है वो 5 से लेस है, so that is why we can write 40 as the round of value, and we have to multiply this 40 into 7 and we get 280. Now actual value you are going to find out, so it is 294. Okay,
सो अभी आप इन दोनों का भी राउंड अप वैल्यू करेंगे. सो अगेन यू आर गेटिंग 300. Okay, in both the cases as the round up value. So you can write the statement as, so estimated value 280 is close to the actual value 294. So this is how you need to go for both the values, estimated value or actual value, and you can compare. Okay, तो यहाँ पर जो सम है इसमें सिर्फ आपको एस्टिमेट बोला है, तो आप सिर्फ ये पार्ट करोगे तो भी चलेगा, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालोगे तो भी चलेगा. लेकिन मैंने आपको सिखाने के लिए कि एस्टिमेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में बहुत ही थोड़ा डिफरेंस होता है, इसीलिए मैंने दोनों पार्ट आपके लिए यहाँ पर सॉल्व किया है. ठीक है, तो जो नेक्स्ट सम्स है C, D, E and F, here I will give you the round up value and you just go for the product. Okay, तो I will give you, मैं आपको राउंड अप वैल्यू सब नंबर्स का लिख के देती हूँ, आप सिर्फ सॉल्व कीजिए वही नंबर्स को लेकर. ठीक है, नाउ यहाँ पे जो राउंड अप वैल्यू आपका होगा वो होगा 90 इंटू 6. ठीक है, यहाँ पर अगेन 90 इंटू 4, यहाँ पर होगा आपका 50 इंटू 6, यहाँ पर आपका होगा 60 इंटू 5. तो आप देख सकते हो यहाँ पर 5 है यूनिट प्लेस में. सो इफ़ देर इज़ 5 दैट मीन्स यू हैव टू ऐड अप फॉर द राउंड अप वैल्यू, इसीलिए 90 आ गया. यहाँ पर यू हैव 1, तो 1 को हम ओमिट कर सकते हैं क्योंकि ये लेस देन 5 है. दैट इज़ वाई अगेन यू हैव टू टेक 90 एज द राउंड अप वैल्यू. यहाँ पर 9 है तो 9, इसीलिए ये मोर देन 5 है, इसके लिए हम इसे यहाँ पर 50 ले लेंगे राउंड ऑफ वैल्यू. सिमिलरली यहाँ पे 7 इज़ मोर देन 5, दैट इज़ वाई वी हैव टेकन 60 एज द राउंड ऑफ वैल्यू. तो मैंने आपको हर एक सम का राउंड ऑफ वैल्यू बता दिया है. सो आप सिर्फ इसको, जैसे मैंने फर्स्ट दोनों सम आपको सॉल्व करके दिखाए थे, आप उसी तरह से सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है. सो अनदर 4 सम्स फॉर होमवर्क. ओके, नाउ वी विल मूव फॉर द 5th प्रॉब्लम. नाउ लेट अस सी द 5th क्वेश्चन वेयर यू हैव द वर्ड प्रॉब्लम. आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है and what is written, solve the following problems using estimation method. आपको जो भी प्रॉब्लम दिए गए हैं उसको आप एस्टिमेशन मेथड यूज करके आपको मल्टीप्लिकेशन करना है. सो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो. विनय बॉट 25 पैकेट्स ऑफ कैंडल्स, नॉट कैंडल्स, कैंडीज. सो इट इज कैंडीज. कैंडीज मीन्स चॉकलेट्स. ओके, देयर वेर 7 कैंडीज इन ईच पैकेट. How many candies did Vinay buy? So 25 packets of candies. So उन्होंने विनय ने क्या किया है, जो चॉकलेट के पैकेट्स थे उसने 25 पैकेट्स खरीदे थे. उसमें से हर एक ईच पैकेट में कितने कैंडीज थे, 7 कैंडीज वे थे. तो how many candies did Vinay buy? So for this question we will just form the statements and we will write. Now as you can see that candy packets bought by Vinay is equal to 25. Candies in each packet is equal to 7 in numbers. Then number of candies bought by Vinay will be total number. Okay, it will be 25 multiplied by 7. So here in your question it is written that you have to do it using estimation method. So estimation method से हम इसका solve करेंगे. तो what you will get, instead of 25 you have to round off it to 30. So 30 multiplied by 7 will give you 210. And actual value when you are getting, that is you need to multiply the actual numbers, that is 25 into 7. So this 25 into 7 when you multiply you get 175 as your product. Okay, तो estimation method से आपको 210
10 कैंडीज़ मिलते हैं और एक्चुअल मेथड से आपको 175 कैंडीज़ आते हैं. ओके, सो मैंने इसीलिए आपके लिए दोनों वैल्यूज़ निकाले हैं. ठीक है, सो सिमिलरली यू विल हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट सम्स. Question B is, a milkman has a container which contains 18 liters of milk. If the milkman carries 4 such containers on his bicycle, how much milk is he carrying? So, मिल्कमैन जो है, आपने दूध वाला को देखा होगा, दूध वाले के पास कंटेनर, वो दूध का जो कंटेनर्स रहते हैं ना उनके पास, वो एल्यूमिनियम वाले बड़े बड़े कंटेनर आपने देखे होंगे. तो उन कंटेनर्स में एक कंटेनर में उनका 18 लीटर्स ऑफ मिल्क रहता है. ओके, नाउ ही इज कैरिंग 4 कंटेनर्स. तो उसके पास कितने कंटेनर है? 4 कंटेनर. तो कितना मिल्क टोटल हो जाएगा उनके पास? सो इट विल बी 18 मल्टीप्लाइड बाई 4. सो व्हेन यू आर टेकिंग आउट द एक्चुअल वैल्यू, तब आप क्या करोगे? 18 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे. लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन में एस्टिमेशन वैल्यू भी निकालने बोला है. तो हम क्या करेंगे? हम दोनों वैल्यूज ही निकालेंगे. ठीक है, नाउ यू कैन सी आई हैव डन द एस्टिमेटेड वैल्यू एज वेल एज द एक्चुअल वैल्यू. तो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू में मैंने क्या ले लिया है? 18 को राउंड अप किया है टू 20 एंड आई हैव कैलकुलेटेड 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड आई गॉट द प्रोडक्ट एज 80. एंड यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू आपका था 18 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो उससे आपको प्रोडक्ट मिलता है 72. नाउ यू कैन सी दैट बोथ द प्रोडक्ट्स आर क्लोज बाय. दोनों जो आंसर है वो नियर बाई है, तो इसीलिए आप दोनों को आप एज ए आंसर ले सकते हो. आपको यदि एस्टिमेटेड वैल्यू बोला होगा तो आप लिख सकते हो कि द मिल्कमैन इज कैरिंग 80 लीटर्स ऑफ मिल्क, और यहाँ पर द मिल्कमैन इज कैरिंग 72 लीटर्स ऑफ मिल्क. ओके, सो दिस इज हाउ you need to go for your question. Now we will move to the third one. Third sum is, in a library, 22 books can be arranged in a shelf. How many books can be arranged in 5 such shelves? So you have the shelves and books in a library. तो एक शेल्फ में कितने 22 बुक्स यू कैन अरेंज. सो देर आर अराउंड 5 शेल्व्स इन द लाइब्रेरी. सो हाउ मेनी बुक्स कैन बी अरेंज्ड इन दिस 5 शेल्व्स. सो लेट अस अगेन गो फॉर द एस्टिमेटेड वैल्यू एज वेल एज द एक्चुअल वैल्यू. तो यहाँ पर आपका बुक्स और शेल्व्स है, तो कैसे हम बुक्स को शेल्व्स में अरेंज कर सकते हैं ये हम हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू से पता करेंगे. Now you can see I have found out the values of estimated calculation by estimating as well as by actual value. So you have 20 multiplied by 5. तो यहाँ पर आपके पास 22 था. So 22 को राउंड अप करने से क्या होता है? आपका नंबर आ जाएगा 20, क्योंकि 2 है ना यहाँ पर, तो 2 को तो हम ओमिट कर सकते हैं क्योंकि वो 5 से लेस है. So that is why we have taken 20 as a round of value and we have to multiply it with 5 because you have to arrange it in 5 shelves. तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया, यहाँ पर प्रोडक्ट जो आ गया वो 100 है, और एक्चुअल वैल्यू व्हेन यू आर गोइंग फॉर द एक्चुअल वैल्यू आपका यहाँ पर प्रोडक्ट आता है 110. Okay, so these two numbers are again close by numbers or nearby numbers. So you can say that 100 books we can arrange around 100 books in 5 shelves, and here you can write that 110 books can be arranged in 5 shelves. तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? around 100 books can be arranged in 5 shelves. तो मैं यहाँ पर आपको लिख के दे देती हूँ आंसर. around 100 books can be arranged in 5
shelves, और यहाँ पर लिख सकते हैं 110 books can be arranged in 5 shelves. Okay, so from this answer you can see around ये जो word आ रहा है इसका मतलब ही हो गया आपका estimated value. Okay, so like this you need to write the answer for the previous. दोनों जो मैंने आपको इसके पहले वाले जो questions दिए थे उसमें भी आपको इसी तरह से आंसर लिखने हैं. ठीक है, तो we have completed with exercise 4.7 with this question. Now we will just see what is there in your test yourself. तो आपके रिव्यू एक्सरसाइज में यू हैव स्किप काउंटिंग्स, ये आप कर सकते हो. +15 करोगे तो यू हैव टू गेट द नंबर्स. यहाँ पर 15 का स्किप काउंट है, तो आप 40 + 15 करोगे तो आपके पास 55 आता है. 55 + 15 you will have 70. Then 70 + 15, what will you get? Here you have 85. So likewise you go for each and every box. यहाँ पर 25 को प्लस कीजिए हर एक नंबर के साथ, तो आपको यहाँ पे बॉक्सेस के नंबर्स मिल जाएंगे. ठीक है, देन मल्टीप्लाई ऑन नंबर लाइन एंड राइट द प्रोडक्ट. तो आपको नंबर लाइन में क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था 3 जंप्स 6 टाइम्स, है ना. स्किप कीजिए 3 नंबर और 6 टाइम्स जंप लीजिए. सो यहाँ से 0 से 3 स्किप कीजिए और यू हैव द नंबर्स. सो आप पीछे जो एक्सरसाइजेस है आप उसको देख लीजिए, मैंने यहाँ पर आपको लिख कर भी दिया था. ठीक है, now you have the multiplied the given numbers. This also you have studied, carry over and without carry over, that also you can do. Here you have the horizontal form of multiplication given to you. तो आप इसको क्या करेंगे, वर्टिकल अरेंजमेंट में कर लीजिए और आप then you can solve it. फिर मैच द फॉलोइंग, मैच आप कर सकते हो, जैसे 4 × 3. Which number you will get from here? तो 4 × 3 क्या होता है, 12 होता है ना. तो let us go for this question. 12 होता है, और ये किसके साथ टैली हो रहा है, देखिए यहाँ पर 12 × 1, this gives you again 12. So this and this is equal. Okay, now again here see 6 3s are 18 and then you have 9 2s are 18. So this will give you match. Then 7 2s are 14, 2 7s are 14. So this is your matching. Then 5 10s are 50, 10 5s are 50. Then 9 7s are. Then here you have 21 × 3. So what is 9 7s are, 7 9s are कितना होता है, 63. तो यहाँ पर देखिए ये भी 63 होता है, 21 × 3. So this is your match the following. तो ये मैंने आपको दिखा दिया है. अब आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट द टेबल्स ऑफ 5 and 7 बाय स्किप काउंटिंग मेथड. तो ये कंस्ट्रक्शन भी आपको ऑलरेडी बताया गया है, आपको पिछले वाले जो एक्सरसाइजेस है उसमें आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी आपको ये सिखाया है. यहाँ पर भी बाय एडिंग 1 to 10. तो ये दोनों मेथड्स आपके एक्सरसाइज में है, आप इसे गो थ्रू कीजिए सो दैट यू कैन अगेन डू दिस सम्स. ओके, देन मल्टीप्लाई बाय लैटिस मेथड, दिस ऑल्सो आई हैव टॉट यू एंड यू विल डू मोर क्वेश्चंस, है ना. आपको होमवर्क भी दिए गए हैं, तो साइमल्टेनियसली आप ये भी कर लीजिए तो आपके अच्छे प्रैक्टिस हो जाएंगे. ठीक है, फिर आपका है एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट. एस्टिमेशन भी आपको सिखाया गया है. तो आप जो मल्टीप्लिकेंड है ये नंबर्स को आप लेंगे और इनका आप वैल्यू एस्टिमेट राउंड ऑफ वैल्यू लेंगे और फिर आप मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, फिर मल्टीप्लाई मेंटली यूजिंग द मोस्ट सुटेबल मेथड एंड राइट द आंसर. तो आपको डबलिंग मेथड सिखाया गया है और एक्सपेंडेड फॉर्म मेथड सिखाया गया है. तो यहाँ पर देखिए 3 है तो यहाँ पर डबलिंग मेथड यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी
डबलिंग मेथड हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देखिए सॉल्व द गिवन वर्ड प्रॉब्लम्स है। सो आपका जो वर्ड प्रॉब्लम्स का जो एक्सरसाइज हमने किया है वो एक्सरसाइज आप फॉलो कीजिए, तो आपको ये भी क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए आ जाएंगे। ठीक है। So with this we complete off with the chapter multiplication. Please practice all the exercises properly. Thank you.